everyone. In this video, I will be clearing some common myths and stigmas around CAT VRC. Right? So yes, VRC brings a lot of myths with it. The very first thing, VRC is only for the English medium students. It is not the way it is. Like there are in the past also बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने या रीजनल मीडियम स्कूल स्टूडेंट्स ने कैट VRC में एक अच्छा स्कोर दिया है. राइट स्कूल हमको एक बेस देता है पर उस बेस पर बिल्ड अप हमें करना है. राइट so VRC is about the comprehending and the logic and not about the polished English. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं बट VRC में उनका स्कोर डाउन रहता है. Why? Because which skill is missing? The comprehending skills is missing. And ये comprehending skills आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं. It is in your hand. It is not कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा स्कूलिंग क्या है. There is always a scope of improvement. So yes, if you have a fear factor that you are coming from the Hindi medium or the regional medium school, this is your room of improvement. Improve कीजिए अपने आप को comprehending skills में. Right? So it is not कि it is only for the English medium schools, not at all. In the past, a lot of non-English medium school students have also scored above 99 percentile in VRC. It is only about the comprehension and forming a logic. Right? You need to know the fancy vocabulary. Like because हमको हमारे RC में हमारे VA में बहुत सारे फैंसी वर्ड्स दिखते हैं. ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो शायद मैंने अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में कभी यूज भी नहीं करे हुए हैं. राइट और इसी वजह से क्या होता है आप लोग वर्ड लिस्ट को मगअप करना शुरू करते हैं. राइट देखो वन थिंग इज वेरी क्लियर, जब भी मैं कोई चीज को मगअप करती हूँ विदाउट प्रॉपर यूज मैं उसको उतनी ही जल्दी भूल जाती हूँ क्योंकि वो मेरे माइंड में एक जस्ट लाइक एक फ्लैश मेमोरी की तरह रहता है. you are building your language not only for CAT. This language is going to help you in a long run. कहीं तो कॉर्पोरेट में जाओगे, you are the future CEO. इंग्लिश तो बोलोगे, लेटर में इंग्लिश में ही लिखोगे. आपका सामने जो क्लाइंट होगा, जो आपका सीनियर होगा, वो भी इंग्लिश में बात करने वाला है. So don't think that you are learning, you are improving, you are enhancing your language only for CAT. This is a lifelong skill. English is a lifelong skill. Coming back, yes, fancy words मुझे डराते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या मैं उनका टोन नहीं समझ पाती हूँ? क्या मैं उस सेंटेंस से उस वर्ड का मतलब नहीं निकाल पाती हूँ? That is what the CAT is looking for. That is what the inference is looking for. That is going to boost my understanding thing. Yes, अगर GRE स्टाइल होता, अगर मैं GRE पेपर दे रही होती हूँ तो मुझे vocab की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे fill in the blanks आते हैं. फोकस ही उनका vocab पर रहता है. That here the focus is on the vocab but not in the CAT. CAT पे focus comprehending skills पर है. Right? If you are able to comprehend that sentence, well and good, you are done. Right? So don't be scared from the vocabulary. ठीक है? Okay, let's see. Yes, मुझे एक word दिखा. मुझे आज के RC में 5 नए words दिखे. Agree. But put a little effort over there. Put this word in your day-to-day dictionary. Use them frequently. So next time जब ये words मुझे दिखाई देंगे, मुझे इनसे डर नहीं लगेगा. Then it will not be a fancy vocabulary. Then it will be a regular vocabulary. So complete this journey from fancy vocabulary to a regular vocabulary. ये journey आपको complete करनी है, आप ही को efforts करने हैं. I hope you are getting me. You do not need grammar for VRC.
एग्री, कंप्लीटली एग्री कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब नहीं आता है. आई कंप्लीटली एग्री, आई कांट डिनाई दिस, राइट. बट जब मैं पैरा जंबल कर रही हूँ, जब मैं आरसी के ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रही हूँ, जब मुझे कहीं ना कहीं टोन समझनी है, सेंटेंस का फ्लो स्ट्रक्चर समझना है, तो क्या ग्रामर काम नहीं आएगी? Grammar is not the focus of VRC in CAT, but grammar is the foundation of your language. किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन ही तो उसकी ग्रामर होती है ना. So if I am learning new language, if I am learning English, so why I am missing the foundation of that language? That is going to be the grammar. Right? So yes, grammar is not the focus, but it is the language is built on this grammar. आपको verbs, agreement, subject and verb के rules को रटना नहीं है, but जब sentence आ रहा है तो वो आपको help जरूर करेंगे समझने में. अगर मेरे sentences में दो जैसा word है, although जैसा word है, yet जैसा word है, एंड मेरे पैराजंबल में मुझे ये हेल्प करता है समझने में कि एक कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट आ रहा है, राइट. सो सच अ वे द ग्रामर इज गोइंग टू हेल्प यू. इफ आई रीड नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, आई विल ऑटोमेटिकली एस VRC. ओके, सो हम लोग बहुत बार क्लासेस में बोलते हैं दैट यू हैव टू रीड. रीडिंग इज you like one of the vital steps in your clearing your VRC. Reading will help building the stamina. But CAT के passages are little dense. उनके टॉपिक्स देखो कैसे होते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, राइट. सो कुछ भी रीड करना इज नॉट देयर. स्पेसिफिकली नॉवेल्स, दे आर सेंटर्ड एट द वन पॉइंट. न्यूज़पेपर बहुत कुछ जीके से भी रिलेट होता है, पर मेरे VRC किस पर चलता है? किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर चल रहा है. सो आई नीड टू पिक अप सच थिंग्स जहां पर मुझे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, किसी का लाइक डिबेट दिख रहा है, किसी का एनालिसिस दिख रहा है, राइट. एग्री एंड डिसएग्रीमेंट दिख रहा है, जर्नल जैसी चीजें. ऐसी चीजें जब मैं पढ़ूंगी, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ द अदर पर्सन. हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना, ऑथर अज्यूम क्या कर रहा है, ऑथर कहना क्या चाह रहा है. इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ जीके आर्टिकल, राइट. जीके आर्टिकल का पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना. वो आपको ट्रिक नहीं करेगा, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो आपको सब कुछ सामने सामने रख कर देगा. कोई चीज एज्यूम पीछे छुपा कर नहीं चलेगा, राइट. पर अगर यही बात मेरे किसी एनालिसिस की चल रही है, यही एग्री एंड डिसएग्रीमेंट की चल रही है, यही किसी जर्नल की चल रही है, तो देयर आर गोइंग टू बी द सर्टेन थिंग्स जो ऑथर एज्यूम कर कर चल रहा होगा, कुछ अंडर द कवर कर कर चल रहा होगा, राइट. सो रैंडमली डोंट पिक अप एनीथिंग टू रीड. स्ट्रक्चर व्हाट यू आर रीडिंग, जहां पर मुझे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है. एडिटोरियल पार्ट्स पढ़िए, बेस्ट थिंग है. एडिटोरियल्स में हमेशा वो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो किसी न्यूज़ को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं. यस, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी अप्रिशिएट करते हैं, बट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं न्यूज़ पर, राइट. सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स, right. Moving ahead, VRC is just about the speed reading. स्टूडेंट्स RC पढ़कर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम पैसेज तो पढ़ लिया, बट क्या बोलना चाह रहा है ऑथर वो समझ में नहीं आ रहा है, राइट. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट रीडिंग इन अ स्पीड. यू आर नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग. You are not going behind the screen and asking the author, what are you trying to say? Right? So maintain the speed.
maintain the speed, but the focus should be on the comprehending skill. हर पैराग्राफ के बाद एक वर्ड लिखो, एक सेंटेंस लिखो. What are you able to infer? After all the 4 paragraphs, लास्ट में कंक्लूजन अपने आप निकल कर आएगा. क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है. जब मैं लास्ट पैराग्राफ तक पहुंचती हूँ, कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट पैराग्राफ भूल गई होती हूँ, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ में लिंक क्या है. ऑथर शुरू ऑक्टोपस से हुआ था, अब वो ह्यूमन की बात कर रहा है. सो व्हाट इज ट्राइंग टू एक्चुअली से ओवर हियर, right? So if I'm writing the inference para by para, I will be able to come to the conclusion for sure. So it is not about the speed reading, it is about identifying the structure, it is about the comprehending the each and every paragraph, right? Moving ahead, you cannot improve VRC. It is a talent and it is not a skill. Again the same thing, right? It is a talent. Talent कहाँ से आएगा? टैलेंट को भी तो कहीं ना कहीं एक बेस मिलता है ना. बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैम मैथ्स तो प्रैक्टिस से आ जाती है, बट इंग्लिश इज लाइक यू हैव इट और यू डोंट. या तो ऑथर की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. मैथ पर आप लोगों ने कभी ये देखा है कि आप मैथ्स के एक फॉर्मूला पर कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड तब जाकर वो फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होता है, राइट? क्या आपने हिस्ट्री से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं जो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए कि यस ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये हिस्ट्री का पार्ट आ रहा है, ये इसको मुझे ऐसे एनालाइज करना है. नो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एक टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 आर्टिकल्स पढ़ते हैं. एंड द ट्रेजेडी इज कि उस सारे आर्टिकल्स में इंफॉर्मेशन भी तो अलग होती है ना. सो यू कैन नॉट अप्रोच द every article with the same thing, right? In a way, VRC is a skill. You need to train your brain, right? क्या ट्रेन करना है ताकि वो ऑथर का टोन समझ सके, वो आर्ग्यूमेंट को ब्रेक कैसे करना है वो समझ सके. तो VRC is not only a talent, it is a skill which is going to help you in your life. Not only in CAT, it is going to help you in your life. ठीक है? So yes, we can improve our VRC. RC is luck based. ये actually वो लोग मुझे बोलते हैं जो guess करते हैं. जो बच्चे comprehend कर प्रॉपर एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गेस वर्क कर रहे हैं, दे से दिस कि आरसी तो सिर्फ लक का गेम है. आज मेरा लक अच्छा था, आज मेरे सारे क्वेश्चंस राइट हो गए. आज मेरा लक अच्छा नहीं था, आज मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए. यू आर मिसिंग द गेम, यू आर मिसिंग द गेम, यू आर मिसिंग द लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन, एवरी ऑप्शन. ए एंड बी में 2 ऑप्शंस रह जाते हैं तुम लोगों के पास, सी एंड डी तुम लोग एलिमिनेट कर जाते हो, एंड ए एंड बी में सिर्फ बी इसलिए पिक करते हो क्योंकि वो सुनने में अच्छा लग रहा है. वो एक वर्ड जो बी में दिया गया है वही आरसी में भी वो वर्ड दिया गया है. दैट इज अ रिलेशन यू आर लुकिंग इन द ए बी एंड आरसी. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ए ऑप्शन क्या बोल रहा है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड देन मूव अहेड. ये ताश के पत्तों का गेम नहीं चल रहा है जहाँ पे मुझे गेस करना है. You have to give a proper logic to yourself with every elimination. You need to practice a lot. You need to see, you need to analyze why your questions are going wrong. क्या क्वेश्चन क्लियर था या नहीं था? कितनी बार क्वेश्चन ही तुम लोगों को क्लियर नहीं होता है एंड तुम लोग सीधा ऑप्शंस पर जंप कर जाते हो, राइट? सो यस, RC is absolutely not on the luck, it is on logic, it is not a guessing game. पैसेज में ऑथर क्या बोल रहा है उसको समझना है, लॉजिक लगाना है, एलिमिनेशन के लिए प्रॉपर रीजन देना है. There is a no room for guessing.
Absolutely no room for guessing. Non-engineers do better in VRC. Actually, this game goes little ulta. Engineers are good in quant, but they struggle in the VRC. Humanities and commerce वाले students generally VRC में better करते हैं. But again, wait. अभी हम लोग बोलकर आ रहे हैं कि VRC can be improved. It is a skill. तो फिर why this labeling कि engineer, non-engineer? Why this labeling कि English medium school, Hindi medium school or any other regional medium school? Why? It is all about the strategy. It is all about like comprehending, facing the challenges. Again, you people are stuck in the past. Past में जो हुआ उसी का reflection तुम लोग आज भी दे रहे हो. इससे निकलो बाहर. Live in present. प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है कि कैट में मुझे कॉम्प्रीहेंड करना है. इम्प्रूव दिस, राइट? सो डोंट लुक आउट कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, लुक मोर कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैट. आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, एंड आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. दैट्स ऑल. ऑन द अदर साइड there are a lot of engineers who struggle in quant. Yes, ऐसे students भी देखे हैं मैंने. So this is only labeling. This is you people just एक reason के पीछे अपने hard work को छुपा रहे हो, excuse दे रहे हो कि मुझे hard work ना करना पड़े. So don't give this excuse. Work hard, work in a smart way. Right? That's all for this video. I hope it was giving you a new perspective. Thank you everyone.